Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we were reading chapter 4, subject and predicate of our English language book Cornerstone. Students, in our last video, our topics were verbs, interrogative sentences and question answer. So students, including these topics, we have read about verbs and interrogative sentences with example. And students, we have also read and solved exercise B, which is page number 12 in our English language book Cornerstone in our last video. And students, we have also read and solved exercise A, answer the following questions of chapter 4 in our Fair English Language Notebook in our last video. And students, today's our topics are imperative sentences and question answer. So students, included these topics, today we will read about imperative sentences with example. And after students, we will read and solve remaining question answer of exercise A of chapter 4 in our Fair English Language Notebook in our today's class. Okay, so all students, please pay special attention to class and listen to my words clearly, because today we are going to read about imperative sentences with example. And after students, we will read remaining question answer of exercise A of chapter 4. Okay, so all students, look at the page number 12. Okay, let's see. Learn means सीखिए. Now read these sentences. Now means up, read means पढ़िए, these means in, sentences means वाक्यों. Now read these sentences, it's mean up in वाक्यों को पढ़िए. So let's read these sentences. The first number sentence is there are 3 kittens on the rooftop. Okay, rooftop means students होता है छत, and kittens students we called cats babies kittens. Okay, बिल्ली के बच्चों को हम बोलते हैं kittens. Okay, there are 3 kittens on the rooftop. It's mean छत पर 3 बिल्ली के बच्चे हैं. Okay, let's see second number sentence. Your second number sentence is here is a book you can read. Okay, here is a book, it's mean यहाँ एक किताब है, you can read, आप पढ़ सकते हैं. Okay, here is a book you can read, it's mean यहाँ एक किताब है जिसे आप पढ़ सकते हैं. Okay, listen, let's see third number sentence. Or third number sentence is it is a decision you can you have to take. Okay, it is a decision you have to take. Okay, it is a decision, it's mean यह एक निर्णय है. Decision means students निर्णय. Okay, निर्णय you have to take, it's mean जो आपको लेना है. Okay, यह एक निर्णय है, यह एक decision है जो आपको लेना है. Clear? What do you think is the subject in each of these sentences? Okay, what do you think? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? Is the subject, क्या subject है in each of these sentences? इन प्रत्येक वाक्यों में. Okay, so students, it's mean कि आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं क्या कि इन वाक्यों में, इन प्रत्येक वाक्यों में करता है. ओके, आपको क्या लगता है कि इन प्रत्येक वाक्यों में करता है, सब्जेक्ट है. फॉर सेंटेंसेस बिगनिंग विथ देयर इज ऑब्लिक आर, हियर इज ऑब्लिक आर or it is, we should keep in mind that these words do not indicate the subject or the sentence. Okay, so students, for sentence beginning, okay, तो sentence की शुरुआत okay के लिए there is oblique r. Okay, it's mean there is, it's mean वहाँ है. Okay, there are. Okay, it's mean वहाँ है. Okay, here is, it's mean यहाँ है. And here are, it's mean वहाँ है. Okay, और means या it is, it mean यहाँ है. Okay, it is, it's mean यह है. Clear? तो there is, it's mean वह है. There are, it's mean वहाँ है. Here is, it's mean यह है. Here are, it's mean यहाँ है. और means या it is means यह है. Okay, तो it's mean कि ये जो इस टाइप के हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना कि देयर इज, देयर आर, हियर इज, हियर आर. ओके, तो ये जो वर्ड है ओके, तो वहाँ है ओके, या वहाँ है, यहाँ है, या यहाँ है, या यह से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने माइंड में ये ध्यान रखना चाहिए. ओके, ये ध्यान रखना चाहिए कि ये शब्द वाक्य के कर्ता को नहीं दर्शाते. इंडिकेट मीन्स स्टूडेंट्स होता है दर्शाना. ओके, संकेतित करना. ओके, संकेत देना. तो इस जो ऐसे टाइप के वर्ड होते हैं ना कि देयर इज़, देयर आर, हियर इज़, हियर आर और इट इज़, इन वर्ड से अगर कोई वाक्य बिगनिंग हो रही, किसी सेंटेंस की बिगनिंग हो रही है, कोई वाक्य अगर इन वर्ड से शुरू है ओके, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये शब्द वाक्य के कर्ता को नहीं दर्शाते. ये जो वर्ड्स होते हैं ये सेंटेंस के सब्जेक्ट को इंडिकेट नहीं करते. ओके, लेट अस लर्न हाउ वी शुड डिटरमाइन दी सब्जेक्ट्स इन सच सेंटेंसेस. ओके, लेट अस लर्न, चलिए सीखते हैं हाउ वी शुड डिटरमाइन. ओके, इट्स मीन डिटरमाइन मीन्स हेयर द मीन ऑफ डिटरमाइन डेट, पता लगाना. ओके, निर्धारण करना. तो दिस सब्जेक्ट इट्स मीन करता हूँ इन मीन्स में सच सेंटेंसेस मीन्स ऐसे वाक्य. ओके, तो लेट अस लर्न हाउ वी शुड डिटरमाइन दी सब्जेक्ट इन सच सेंटेंस. इट्स मीन आइए जाने कि हम ऐसे वाक्यों में कर्ताओं का निर्धारण कैसे करना चाहिए हमें. ओके, सो चलिए आइए हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों में हम कर्ताओं का निर्धारण कैसे कर सकते हैं, हमें कर्ताओं का निर्धारण कैसे करना चाहिए. ओके, सो लेट्स सी. देयर आर 3 किटन्स ऑन दी रूफटॉप. इट्स मीन कि छत पर 3 बिल्ली के बच्चे हैं. ओके, हु इज़ ऑन दी रूफटॉप, छत पर कौन है.
तो 3 किटेंस। ओके, आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 3 किटेंस, इट मीन 3 बिल्ली के बच्चे। ओके, तो स्टूडेंट 3 किटेंस, जो किटेंस है ना, इट्स योर सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, करता है। क्लियर? लेट्स सी सेकंड नंबर क्वेश्चन, सॉरी लेट्स सी सेकंड नंबर सेंटेंस। योर सेकंड नंबर सेंटेंस इज हियर इज अ बुक यू कैन रीड। ओके, यहाँ एक किताब है जिसे आप पढ़ सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स हु कैन रीड अ बुक? ओके, इट्स मीन ये एक किताब कौन पढ़ सकता है? तो स्टूडेंट्स वी फाइंड आउट आंसर यू, आप एक। ओके, इट्स मीन यू कैन रीड अ बुक, आप ये किताब पढ़ सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स इन दिस सेंटेंस यू इट्स योर सब्जेक्ट। ओके, यू क्या आपका सब्जेक्ट है, करता है। ओके, लेट्स सी थर्ड नंबर सेंटेंस। योर थर्ड नंबर सेंटेंस इज इट इज़ अ डिसीजन यू हैव टू टेक। ओके, इट्स मीन यह एक निर्णय है और जो आप ले सकते हो। ओके, जो आपको लेना है, इट इज़ अ डिसीजन यू हैव टू टेक, इट्स मीन यह एक निर्णय है जो आपको लेना है। सो स्टूडेंट्स हु हैज़ टू टेक अ डिसीजन, इट्स मीन यह निर्णय किसको लेना है। ओके, सो स्टूडेंट्स वी फाइंड आंसर यू, आपको। ओके, सो स्टूडेंट्स इन दिस सेंटेंस यू इट्स योर सब्जेक्ट। ओके, यू जो है, आप है, वो आपका सब्जेक्ट है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स turn your page forward and look at the page number 13. Okay, let's see. Now read these imperative sentences. Now means आप read means पढ़िए, these means in, imperative sentences means students आदेशात्मक वाक्य. Okay, so students now read these imperative sentences. It's mean अब इन आदेशात्मक वाक्यों को पढ़िए. Okay, so let's read these imperative sentences. The first number sentence is stand up. Okay, it's mean खड़े हो जाइए. Second sentence is read the book. Read means पढ़िए, the book means किताब. Read the book, it's mean किताब पढ़िए. Okay, third sentence is don't sit there. Okay, don't sit there. Sit means बैठना, there means वहाँ. Don't sit there, it's mean वहाँ मत बैठो. ओके, वहाँ मत बैठिए या वहाँ मत बैठो. क्लियर? तो कैन यू पॉइंट आउट द सब्जेक्ट्स एंड द प्रेडिकेट्स इन दिस सेंटेंसेस गिव अप. ओके, इट्स मीन पॉइंट आउट मीन्स स्टूडेंट्स, हियर द मीन ऑफ पॉइंट आउट. पॉइंट आउट मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि ध्यान देना. ओके, और तो स्टूडेंट्स कि आपने क्या पॉइंट आउट किया, आपने ध्यान दिया. ओके, कि क्या आप ऊपर दिए गए वाक्यों में कर्ता और विधेय को दिखा सकते हैं, उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं. ओके, उसे शो कर सकते हैं. ओके, कैन यू पॉइंट आउट, क्या पॉइंट आउट कर सकते हैं? दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, एंड मीन्स और दी प्रेडिकेट मीन्स विधेय इन द सेंटेंसेस, वाक्यों में गिवन ऊपर दिए हुए. ओके, तो स्टूडेंट्स हियर द मीन ऑफ पॉइंट आउट दैट दिखाना, शो करना. ओके, तो स्टूडेंट्स क्या आप ऊपर दिए हुए सेंटेंसेस में, ऊपर दिए हुए वाक्यों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पॉइंट आउट कर सकते हैं, इट्स मीन कर्ता और विधेय को दिखा सकते हैं. ओके, वी हैव लर्न, हम सीख चुके हैं दैट इन इम्परेटिव सेंटेंसेस, आदेशात्मक वाक्यों में दिस सब्जेक्ट इट मीन कर्ता, यू मीन्स आप, इज मीन्स है, इम्प्लाइड. ओके, निहित. तो स्टूडेंट्स वी हैव लर्न दैट इज इम्परेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट यू इज इम्प्लाइड. ओके, तो स्टूडेंट्स हम ये लर्न कर चुके हैं, हम ये सीख चुके हैं कि जो हमारी इम्परेटिव सेंटेंसेस होती है, जो हमारी आदेशात्मक वाक्य होती है, उसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, जो कर्ता होता है, ओके, वो यू होता है. क्लियर? तो हम सीख चुके हैं कि आदेशात्मक वाक्यों में जो कर्ता होता है, ओके, वो आप में निहित होता है. ओके, वो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है. इम्प्लाइड में स्टूडेंट्स होता है निहित होना. ओके, so students let's see, we can determine the subject and predicate in imperative sentences in the following manners. Okay, फॉलोइंग मैनर मीन्स मैनर का, फॉलोइंग मैनर्स मीन्स तरीक़ों से, निम्नलिखित तरीक़ों से. ओके, वी कैन डिटरमाइन. ओके, इट्स मीन कि हम वी कैन डिटरमाइन दी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, इट्स मीन हम कर्ता और विधेय को आदेशात्मक वाक्यों में निम्नलिखित तरीकों से निर्धारित कर सकते हैं. वी कैन डिटरमाइन दी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन इम्परेटिव सेंटेंसेस इन दी फॉलोइंग मैनर. डिटरमाइन मीन्स स्टूडेंट्स होते हैं निर्धारित करना. ओके, तो इट्स मीन कि हम कर्ता और विधेय को आदेशात्मक वाक्यों में इम्परेटिव सेंटेंसेस में निम्नलिखित तरीके से निर्धारित कर सकते हैं. फॉलोइंग मैनर मीन्स निम्नलिखित तरीके से. ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स सी दिस टेबल. ओके, योर फर्स्ट नंबर कॉलम इट्स अ कॉलम ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कॉलम है, एंड इट्स योर सेकेंड नंबर कॉलम इट्स अ कॉलम ऑफ प्रेडिकेट, इट्स योर विधेय का कॉलम है आपका. ओके, प्रेडिकेट का कॉलम है. सो स्टूडेंट्स फर्स्टली लेट्स सी प्रेडिकेट. प्रेडिकेट इज स्टैंड अप. ओके, स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाइए. ओके, सो स्टूडेंट्स इट्स एन इम्परेटिव सेंटेंस एंड इन दिस सेंटेंस स्टैंड अप योर सब्जेक्ट इट्स यू. ओके, तो स्टैंड अप इट मीन खड़े हो जाइए. तो हु स्टैंड अप? तो यू स्टैंड अप. ओके, आप खड़े हो जाइए. तो यू इट्स योर सब्जेक्ट. क्लियर? लेट्स सी सेकंड नंबर इम्परेटिव सेंटेंस. और सेकंड नंबर इम्परेटिव सेंटेंस इज रीड द बुक. बुक पढ़िए. ओके, सो स्टूडेंट्स हु रीड द बुक? ओके, किसको बुक पढ़नी है, किसको बुक रीड करनी है? तो यू रीड द बुक, आप बुक पढ़िए. ओके, सो स्टूडेंट इन दिस सेंटेंस यू इट्स योर सब्जेक्ट. क्लियर? लेट्स सी थर्ड नंबर सेंटेंस. लेट्स सी थर्ड नंबर प्रेडिकेट. ओके, योर प्रेडिकेट इज डोंट सिट देयर. ओके, डोंट सिट देयर इट्स वहाँ मत बैठिए. तो स्टूडेंट्स in this sentence your subject is you. Okay, तो students your predicates are stand up, read the book, don't sit there. Okay, ये आपके predicate है, विधेय है. और students all these predicate, इन सारे predicate में आपका जो subject होगा वो you है. क्लियर? तो students in this way we have learned that imperative sentence में हमारा जो subject होता है वो you होता है. क्लियर? तो students
we have read about imperative sentences and verbs, and I hope you must have understood verbs and imperative sentences. You have no problem in these topics. Okay, so now we are going to read and solve remaining questions of exercise A in our Fair English Language notebook. Okay, so let's see question number 6. Student, we have read and solve first to 5 question answer of this chapter 4 in our last video. Okay, and today we are going to read and solve 6 to 10 questions of this chapter 4 in our Fair English Language notebook. Okay, so let's see. Students, your 6 number question is what is the verb? Okay, what means kya? It means है. The verb means kriya. What is the verb? It means kriya kya hai? Okay, so students, your 6 number answer is the verb is always a part of the predicate because it tells us about the actions of the subject. Okay, the verb means kriya. It means है. Always means सदैव या हमेशा. A means एक. Part of the predicate. Part means भाग या हिस्सा. Of means का. The predicate means विधेय. Because means क्योंकि. It means यह. Tells us means हमें बताता है. About means बारे में. The actions. Access means students वर्क क्रिया. Okay, of the subject means कर्ता का. Clear? The verb is always a part of the predicate because it tells us about the action of this subject. It's mean क्रिया हमेशा विधेय का एक भाग होता है क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताता है. ये हमें कर्ता के क्रिया के कर्ता के वर्क के बारे में बताता है, कर्ता के काम के बारे में बताता है. तो इसमें जो वर्ब होता है ना, क्रिया होता है, ये प्रेडिकेट का एक पार्ट होता है, विधेय का एक भाग होता है. ओके, लेट्स एग्जांपल. Your example is the beautiful peacocks danced in the rain. Okay, beautiful peacocks. The beautiful peacocks means students सुंदर मोरू. Okay, danced means नृत्य किया. Dance is the second form of dance. Dance means नृत्य करना. Dance means नृत्य किया. In the rain means बारिश में. Okay, so students, the meaning of this example is that सुंदर मोरू ने बारिश में नृत्य किया. Okay, so students, in this sentence danced it's a verb. ये verb है. Okay, तो students जो आपका जो वर्ब है वो इट्स अ पार्ट ऑफ दिस प्रेडिकेट डांस इन द रेन. ओके, इन दिस सेंटेंस द ब्यूटीफुल पिकॉक्स इट्स अ सब्जेक्ट, डांस इन द रेन इट्स अ प्रेडिकेट. ओके, डांस इन द रेन कंप्लीट आपका पूरा प्रेडिकेट है और डांस्ड ओनली डांस इट्स अ वर्ब. ओके, ये जो डांस्ड वर्ड है ये आपका वर्ब है, क्रिया है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इन दिस सेंटेंस डांस इट्स अ वर्ब एंड डांस आपका वर्ब है. And students, we can find out a subject that what did the beautiful peacocks do. Okay, what did the beautiful peacocks do? Okay, beautiful peacocks ने क्या किया? तो the beautiful peacocks danced in the rain. Okay, सुंदर मोरों ने बारिश में नृत्य किया. Okay, तो ये स्टूडेंट्स जो डांस्ड है ना, ये सब्जेक्ट के एक्शन को शो कर रहा है ना, सब्जेक्ट के एक्शन को शो कर रहा है कि ब्यूटीफुल पिकॉक्स ने नृत्य किया, डांस किया है ना, तो डांस्ड इट्स अ वर्ब. क्लियर? लेट्स सी 7 number question. Your 7 number question is what are helping verbs? It's mean helping verbs means सहायक क्रिया. ओके, सहायक क्रिया क्या है? ओके, what are helping verbs? It's mean सहायक क्रियाएं क्या हैं? ओके, so students, your 7 number says verbs such as is, are, am, was, were, has, have, etc. are called helping verbs. ओके, वर्ड्स मीन्स क्रियाएं, सच एस मीन्स जैसे कि इज मीन्स है, आर मीन्स है, एम मीन्स हूँ, वाज मीन्स था, वर मीन्स थे. ओके, हैज़ इट्स मीन हैज़ का यूज़ करते हैं स्टूडेंट. हैज़ एंड हैव बोथ आर योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब. ओके, हैज़ वी यूज़ हैज़ in singular form and we use have in plural form. Okay, and are etc. Okay, it's etc means students होता है आदि. बहुत जैसे हेल्पिंग वर्ब है, will, would, shall, should, can, could. Okay, so are called helping words. तो इन सारे वर्ड्स को हेल्पिंग वर्ड्स बोलते हैं. इट्स हेल्पिंग वर्ड में सहायक क्रिया. ओके, तो वर्ड सच एज एज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, etc. आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स. इट्स मीन कि सहायक क्रिया जैसे एज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव आदि सहायक क्रियाएं कहलाती हैं. ओके, लेट्स एग्जांपल. देयर इज समवन एट द डोर. ओके, देयर इज समवन एट द डोर. सो स्टूडेंट्स, इन दिस सेंटेंस द मीन ऑफ दिस, फर्स्टली स्टूडेंट्स लेट्स सी द मीन ऑफ दिस एग्जांपल. द मीन ऑफ दिस एग्जांपल इज दैट दरवाजे पर कोई है. ओके, देयर इज समवन एट द डोर. इट्स मीन दरवाजे पर कोई है. ओके, सो इन दिस सेंटेंस इट्स योर हेल्पिंग वर्ब एंड इट्स अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म. क्लियर? तो ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्लियर, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर फॉर्म में. लेट्स सी 8 नंबर क्वेश्चन. 8 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट डू प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, तो इट्स मीन कि एक प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट का क्या प्लेस होता है. एक प्रश्नवाचक वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर्ता का क्या स्थान होता है. ओके, सब्जेक्ट का क्या प्लेस होता है. So students, your 8 number answer is this subject comes after the helping verb in an interrogative sentence. Okay, it's mean एक प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है. ओके, एक प्रश्नवाचक वाक्य में कर्ता सहायक क्रिया के बाद में आते हैं. ओके, सो लेट्स एग्जांपल. योर एग्जांपल इज डू यू लाइक वनीला आइसक्रीम. क्या आपको वनीला आइसक्रीम पसंद है या क्या आप वनीला आइसक्रीम पसंद करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, इन दिस सेंटेंस डू इट्स योर हेल्पिंग वर्ब एंड इट्स अ
Present indifferent tense helping verb in plural form and students, you it's your subject, you आपका subject है and do आपकी helping verb. And we can see in this example that you come आफ्टर डू. ओके, यू जो है वो डू के बाद में आ रहा है, यू इट्स अवर सब्जेक्ट एंड डू इट्स अवर हेल्पिंग वर्ब. ओके, तो जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब के आफ्टर है ना, बाद में है. ओके, तो स्टूडेंट्स जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उसमें सब्जेक्ट का जो प्लेस होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता है. क्लियर? लेट्स सी 9 number question. और 9 number question is which words do not indicate the subject of the sentence. Okay, which words do not indicate the subject of the sentence. Okay, it's mean कौन से शब्द, ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं, ऐसे कौन से शब्द होते हैं, ओके, जो वाक्य के कर्ता को नहीं दर्शाते, ओके, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट को नहीं शो करते. इंडिकेट मीन्स संकेत करना, दर्शाना. ओके, तो ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं, ऐसे कौन से शब्द होते हैं जो वाक्य के कर्ता को नहीं दर्शाते हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, 9 number आंसर इज देयर इज ऑब्लिक देयर आर, हियर इज ऑब्लिक हियर आर. It is do not indicate the subject of this sentence. We can determine the subject in a sentence like that. Okay. So students, there is means वहाँ है, there are means वहाँ हैं, here is it's mean यहाँ है, here are means यहाँ हैं, it is means यह है. Do not indicate the subject of the sentence. Okay, तो ये जो word है there is it's mean वहाँ है, there are means वहाँ है, here it means यहाँ है, here are means यहाँ है, it is means यह है. ये शब्द वाक्य में कर्ता को दर्शाते नहीं हैं. ओके, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को नहीं इंडिकेट करते हैं, कर्ता को नहीं दर्शाते. ओके, वी कैन डिटरमाइन दी सब्जेक्ट. ओके, और तो स्टूडेंट्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं. डिटरमाइन मीन्स निर्धारित करना. ओके, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, इन अ सेंटेंस मीन्स वाक्य में, लाइक दैट मीन्स इस प्रकार. तो वी कैन डिटरमाइन द सब्जेक्ट इन दी सेंटेंस लाइक दैट. इट्स मीन कि हम इस तरह के वाक्यों में कर्ता को निर्धारित कर सकते हैं इस प्रकार. ओके, हम इस प्रकार के वाक्य में कर्ता निर्धारित कर सकते हैं ऐसे. और स्टूडेंट्स, लेट्स एग्जांपल. ये एग्जांपल इज हियर इज अ बुक यू कैन रीड. ओके, इट्स मीन यहाँ एक किताब है जिसे आप पढ़ सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, हु कैन रीड अ बुक? ओके, इट्स मीन कौन एक किताब पढ़ सकता है? तो यू. ओके, आप एक किताब पढ़ सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, इन दिस सेंटेंस वी कैन डिटरमाइन सब्जेक्ट बाई पुट हु. ओके, तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हु को पुट करके हमने सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लिया. ओके, हु कैन रीड अ बुक, एक किताब कौन पढ़ सकते हैं? तो यू. ओके, अब वी हैव फाइंड आंसर यू. ओके, सो स्टूडेंट, यू इट्स योर सब्जेक्ट, यू आपका क्या सब्जेक्ट है. क्लियर? लेट्स सी 10 number question. योर 10 number question इज विच सब्जेक्ट डज इम्प्लाई इन एन इम्परेटिव सेंटेंस. ओके, तो विच सब्जेक्ट मीन्स कौन सा करता. ओके, डज इम्प्लाई. ओके, इन एन इम्परेटिव सेंटेंस. स्टूडेंट्स, इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स आदेशात्मक वाक्य. ओके, तो स्टूडेंट्स इट्स मीन कि कौन सा करता. ओके, इम्प्लाई इन एन इम्परेटिव सेंटेंस. तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में एक आदेशात्मक वाक्य में ये जो इम्प्लाई करता है, कौन सा सब्जेक्ट इम्प्लाई होता है. ओके, कौन सा कर्ता निहित होता है. ओके, इट्स मीन कि आदेशात्मक वाक्य में कौन सा कर्ता निहित होता है. ओके, एक आदेशात्मक वाक्य में कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा कर्ता निहित होता है, ये कौन सा कर्ता दर्शाता है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, योर 10 number आंसर विच इज लास्ट आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज है द सब्जेक्ट यू इज इम्प्लाइड इन एन इम्परेटिव सेंटेंस. ओके, इन एन इम्परेटिव सेंटेंस इट्स मीन एक आदेशात्मक वाक्य में द सब्जेक्ट इट्स मीन कर्ता. ओके, यू इट्स मीन आप, इट मीन्स है इम्प्लाइड मीन्स या द मीनिंग ऑफ इम्प्लाइड है प्रदर्शित करता है या सूचित करता है या निहित होता है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इट्स मीन कि एक आदेशात्मक वाक्य में यू इट्स मीन आप कर्ता को प्रदर्शित करता है. ये जो वर्ड होता है यू, आप, ये कर्ता को सूचित करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है. क्लियर? लेट्स एग्जाम्पल. योर एग्जाम्पल इज यू स्टैंड अप. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपका जो स्टैंड अप है इट्स अ प्रेडिकेट, ये आपका प्रेडिकेट है, विधेय. एंड स्टूडेंट, यू इट्स योर सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है. क्लियर? तो यू आपका सब्जेक्ट है एंड स्टैंड अप प्रेडिकेट है. एंड दिस एग्जाम्पल इट्स एन इम्परेटिव सेंटेंस, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, स्टैंड अप. ओके, कमांड दी जा रही है. क्लियर? So students, we have read and solved 6 to 10 questions of this exercise A of chapter 4, and I hope you must have understood all these questions and you have no problem in any answer of this exercise A. Okay, so students, today's your classwork is that note down question answer 6 to 10 of exercise of chapter 4 in your file English language notebook and send me your work here. It's a today's classwork. And since your homework is that learn exercise A, learn question answer 6 to 10 of this exercise of chapter 4 from your file English language notebook. It's your today's homework. आपका classwork है कि आपको
जो हमारी एक्सरसाइज है कि रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर थे विच वी हैव रीड एंड सॉल्व टुडे। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करने हैं अपनी फेयर इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक में। इट्स टुडेज क्लास वर्क एंड योर होमवर्क इज दैट, आपको होमवर्क है कि आपको 6 to 10 क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक से लर्न करने। ओके एंड स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम फॉर लर्निंग बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके सो स्टूडेंट्स, firstly complete your classwork, note down question number 6 to question number 10 of this exercise of chapter 4 in your fair English language notebook and send me your work here. Thank you.